Afternoon class. Good evening, sir. ये कल का कोड कंप्लीट हो गया था अपना? चलिए आई लुक इनटू दैट. क्लास yesterday हमारा कोड कंप्लीट हो गया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. ओके, तो भैया एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या होता है एक्सेप्शन? तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए हमें हमारे प्रोग्राम को प्रिपेयर करना है. Whenever an unexpected situation occur, if we are not handling that situation, then our program is going to crash. Crashing of a program means loss of user data. Okay, and user do not want to lose any data in any kind of situation. For example, if you have created a text editor application, if you have created a text editor application and user have worked on 200 lines, okay, and then the application crashes, okay, what user expect that at least 80-90% of work is saved. What the user expectation is 100% of the work is saved. So what Microsoft Word provide you with a feature of auto save, same as the IDE also provide you with this feature of auto save. Why? To save your data from getting deleted if an unwanted event or unexpected event is occurred. Like in our real life also, so this is an unwanted event that occurs. Okay, and are we prepared for this unexpected event? No. So came the lockdown, then online classes after some time. So there's life, losses are there, job loss. A lot of people have lost their job. So all these are the situation which we are not prepared due to the unexpected event. So that's why it's suggested to perform exception handling. Other languages what generate in an unexpected situation, they generate error codes. Okay, on website you have found 404 the page not found error. Okay, the page is not available. So with this error code, what a general user will understand? Nothing. So same Java came with a mechanism of exception handling to let the user understand the uh, what problem occurs and what the solution you are providing to the user. So whenever an unexpected event occurs, you can either close the program by saving the data of user, or you can, without handling, let the program crash. Okay,
What is a better situation? Closing the program and let the user data save is always a better situation. So that's why we'll discuss about exception handling. Okay. So today what we are going to explore is introduction to exception handling technique, exception handling keywords. Okay. So we'll start with this particular scenario that if you are going and boarding an aeroplane, then these are the common instructions. These are the common instructions which an airline staff will give you, like fasten your seat belt. This is the life jacket, how to wear it and how to use it during the emergency situation. Then there's oxygen mask also. Okay, ऑक्सीजन मास्क ऑल्सो. सो पहले इमरजेंसी की सिचुएशन में पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं. लाइक दिस, ऑल दिस आर द इंस्ट्रक्शन, दिस आर गिवन बाय. क्या उनको लग रहा है प्लेन क्रैश हो जाएगा? नहीं. On any unexpected situation, you must be prepared. You must be prepared. You must aware of the all the exit door, all the exit door. If there's an emergency, you want to exit the plane, then you must be aware of about all these things. So that's why they are planning. They are creating a preventive measure. They are creating a preventive measure. So the previous slide depicts an air hostess giving an demonstration of steps that we have to take as a passenger in case of emergency. Why this demonstration is important? Why the airline staff insists on fastening our seat belt? The answer is you have to be aware of how to tackle a situation in case an emergency while you are flying abroad an aircraft. You have to fasten your seat belt to protect yourself from mishaps that can occur during takeoff, landing, and during in-air turbulence also. Okay, so all the instructions will lead you for an unexpected event can occur, which can occur, and the seat belt will protect you during the landing as well as takeoff. So that's why these guidance are there to prevent you as an preventive measure. This example, this example demonstrates how you have to take have to think in advance that many possibilities of mishap that can occur and what are the preventive measures that can be taken. So we are during programming we have to also identify all the many possibilities for unexpected event, like array index. Array index, if you are looking for a file, if you are looking for a database connectivity, okay, if you are looking for internet connectivity. For example, you all use GPay, Google Pay. एप्लीकेशन है मोबाइल में गूगल पे आपके. ये एप्लीकेशन विद इंटरनेट चलती, विदाउट इंटरनेट चलती? कैन एनीवन? with internet. विथ इंटरनेट. विदाउट इंटरनेट दिस एप्लीकेशन वॉन्ट वर्क, है ना. सो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या आइडेंटिफाई की? देयर कैन बी अ प्लेस जहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा. ओके, अब क्या करें? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, चलती सिर्फ इंटरनेट पे. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, एप्लीकेशन बूट करा ली, सेकेंड स्टेज पे बैठे हुए हैं, नाउ इंटरनेट नहीं है. अब आगे क्या करें? So what they give you message? They give you message. Check your internet connectivity. Check your internet connectivity. They do not let their application crash due to that. Internet connectivity is must, but they do not let their system crashes out. Okay. So that is the one of the possibility. That is the one of the possibility. Internet नहीं हो सकता. Okay. So all these are the preventive measures. All these are the preventive measures. We can identify those by application planning, during the application planning. Like for example, accessing a
Now this is also an unexpected event. This is also an unexpected event. चलें, moving forward. Similarly, when we write programs as a part of application, we may have to visualize the challenges that can disrupt the normal flow of execution. We have to identify either it can be array index or an object reference pointing to null. So there are different things we have to visualize that कि ऐसी situations हमारे पास ना आए जो कि हमारा क्या कर दें, disrupt the normal flow of execution. Okay. Once we identify different situations that can disrupt the flow of execution, we can take preventive measures to overcome these disruptions. So in Java, this mechanism comes in form of exception handling. मतलब पहले तो identify करनी है कि ये situation है, okay, that situation can disrupt the flow of execution, and then you have to put the preventive measures. You have to put the preventive measures to overcome these disruptions, okay. ये काम करना है. तो ये आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंट करना इज द की. ऋतिक, कंटेक्स्ट बोलो. नो सर, वो आपने नहीं कहा अभी कि एक इवेंट ये नेट का इशू जो हुआ था, हम्म. इसलिए मैंने कहा ये कोई मैसेज पहले थ्रो नहीं करता कि आप क्लासरूम से निकल चुके हो। नहीं बेटा, वो मुझे कभी कभी इंटरनेट अनस्टेबल बोल देता है ना. व्हेन इट फील्स माय इंटरनेट स्पीड इज नॉट दैट, इंटरनेट स्पीड यस इज सर। नॉट दैट गुड. तो वो मुझे मैसेज देता है दी कनेक्शन इज अनस्टेबल और फिर डिसकनेक्शन होता है. दैट आई एम अवेयर ऑफ दैट थिंग. उसने मुझे एक अवेयरनेस दी थी. बट समटाइम क्या होता है, कॉलेज में हूँ, पावर चला गया और आ गया तो राउटर बंद हो जाता है. आई एम कनेक्टेड टू एन राउटर, तो वो राउटर बंद होता है और चालू होता है तो उतनी देर में सिस्टम रीसेट हो जाता है, बस नथिंग. ओके. यस सर। चलें मूविंग. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो व्हाट इज एन एक्सेप्शन? An unwanted, unexpected event that can occur during the execution of a program that disrupt the normal flow of instruction is nothing but exception. अब देखिए, राइट नाउ मेरे सिस्टम की बैटरी डाउन हो जाए और मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाए, ओके, पावर फेलियर के कारण क्रैश हो जाए मेरा सिस्टम. सो ये एक्सेप्शन है क्या? Is that an exception? No, that's an hardware failure. That's an hardware failure. Okay, कि मेरी हार्ड ड्राइव चलना बंद हो गई, तोबा तोबा, टचवुड, अभी चलते रहे. ओके, कि सिस्टम की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई. ओके, अब वो चालू ही नहीं हो रहा. दैट्स इज अ हार्डवेयर फेलियर, नॉट एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन वो सिचुएशन होगी जो हम प्रोग्रामेटिकली कवर कर सकते हैं. बाय प्रोग्रामिंग हम कवर कर सकते हैं. मीन्स विंडोज का करप्ट हो गया, इट्स एन सॉफ्टवेयर फेलियर. इसको मैं सुधार नहीं सकता. कौन सुधार सकता है? The developer can work on the system report I'll send. I try to reboot my system and or I can reinstall it. That is the solution I have. But as a programmer, if I am creating a software, I want during the execution it will behave properly, and I will collect all the log data. And will store. Okay, will improve my software. So an unwanted, unexpected event that occurs during the execution of program that disrupt the normal flow of instruction is nothing but exception. अब इसको हैंडल कैसे करेंगे भैया? पहले तो हम वो सिचुएशंस की बात कर लेते हैं जिनके कारण एक्सेप्शन आएगा. देयर आर वेरियस situations when an exception could occur. Some of them are attempting to access a file that does not exist, inserting an element into an array at a position that is not in its bounds. मतलब जीरो से लेके साइज -1 के बीच के बाहर की कहीं हम जगह पे जा रहे हैं, या तो इस तरफ या इस तरफ जा रहे हैं, इन बिटवीन तो ऑल गुड है, तब भी प्रॉब्लम है. परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज नॉट परमिटेड. तो भैया कंप्यूटर के ऊपर आप डिवीजन बाय जीरो नहीं कर सकते. कंप्यूटर के ऊपर आप डिवीजन बाय जीरो नहीं कर सकते. ओके.
ये क्या देता है, ये दिस विल जनरेट एन एक्सेप्शन, दिस विल जनरेट एन एक्सेप्शन। ओके, डिक्लेयरिंग एन एरे यूजिंग नेगेटिव वैल्यू। तो भैया आप एरे डिक्लेयर करते हैं और आपने गलती से लिख दिया न्यू इंट -10, कंपाइल टाइम पे तो कुछ नहीं पता चलेगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, दिस विल जनरेट एन एक्सेप्शन। सो यू हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन, आइदर यू कैन अवॉइड और प्रोवाइड द प्रिवेंटिव मेजर्स। अब यहाँ देखिए, अगर मैं जनरेट कर रहा होता न्यू इंट साइज, और ये साइज डायनामिकली कहीं किसी फंक्शन के थ्रू कॉल होता, इंट साइज इक्वल्स टू गेट साइज, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम ये फंक्शन से क्या वैल्यू आने वाली है साइज में, मुझे नहीं मालूम, ये साइज जाएगा इसके पास। ओके, नाउ इट कैन कंटेन अ नेगेटिव, पॉजिटिव और एनी वैल्यू। तब यहाँ तो आ जाएगा ना, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ विजुलाइज की यहाँ से क्या वैल्यू आने वाली है। ओके, सो दैट कैन बी ए नेगेटिव वैल्यू। ओके, another example I just clicked with this, I just clicked with it कि तुमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यूजर से आपने बोला प्लीज एंटर साइज ऑफ एरे। अब आपका यूजर ने -5 डाल दिया, आपके यूजर ने वैल्यू डाल दी -5। अब आप क्या कर सकते हैं, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूजर आपको प्रॉपर साइज देगा, तो इन चीजों के कारण भी क्या होता है, एक्सेप्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं भैया, हम आप एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपकी क्लास है डेमो, इसमें मेन मेथड है, या आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, या आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज करने जा रहे हैं बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, कंपाइल हो जाएगी ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, लास्ट वाली लाइन भी। बट although this program will compile, but when you execute it, the Java runtime system will generate an exception and displays the following output on the console। अब यहाँ पे जो बात है जनरेट दी एक्सेप्शन, इसकी बात करते हैं, पहले आउटपुट देख लें। इट विल गिव यू द नेम ऑफ एक्सेप्शन, वेरी फर्स्ट थिंग, तो उस एक्सेप्शन की क्लास आपको दे देगा। देयर आर डिफरेंट एक्सेप्शन क्लासेस अवेलेबल इन जावा, java.lang.arithmetic exception, this is the class name, and this is the reason why the exception is occurred, that is division by 0। this is the method demo.main, demo क्लास के मेन मेथड में ये एरर आया है, demo.main, demo.java फाइल की लाइन नंबर 4 के कारण आया। देखें हम लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, जैसे यहाँ एक्सेप्शन आता है क्या होता है भैया, जनरेट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। जो जावा का रन टाइम सिस्टम है, जावा रन टाइम सिस्टम जनरेट एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू हैंडलर। कौन सा हैंडलर भैया, एक्सेप्शन का हैंडलर जो है उसके पास ट्रांसफर कर देता है। अगर एक्सेप्शन हैंडलर है तो हैंडलर के पास जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो नहीं है तो सिस्टम बंद हो जाएगा और जावा खुद ही उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। द सिस्टम विल क्रैश एंड जावा विल हैंडल दैट एक्सेप्शन, द डिफॉल्ट मैकेनिज्म ऑफ जावा विल हैंडल द एक्सेप्शन। तो ये उन्होंने बाय डिफॉल्ट हैंडल किया है, दिस एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय जावा सिस्टम बाय डिफॉल्ट बिकॉज देयर इज नो हैंडलर। ओके, तो जब भी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू हैंडलर। ओके, चलें आगे चल के हैंडलर देखेंगे अभी इसी लेक्चर में। So what is exception handling? The ability of a program to intercept runtime errors, take corrective measures, and continue execution is referred to as exception handling. Means आइडेंटिफाई करना रन टाइम एरर्स को, करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, और कंटिन्यूइंग दी एग्जीक्यूशन। देखिए क्या होता है ना, आप क्या करते हैं, सिचुएशंस को
आइडेंटिफाई करते हैं, देन व्हाट यू डू, प्रोवाइड करेक्टिव मेजर, ये आप कोड में पहले से ही करके रखते हैं, एंड देन व्हाट यू डू, यू विल प्रोवाइड अल्टरनेट फ्लो ऑफ प्रोग्राम, कि भैया वो काम नहीं हो पाया तो ये वाला काम कर लें। ओके, दिस इज रिफर्ड एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म। जावा में हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम उन रन टाइम एरर्स जो आ सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एक जगह रखेंगे, फिर हम हैंडलर प्रोवाइड करेंगे, वहां पे हम करेक्टिव मेजर्स और अल्टरनेट फ्लो डिफाइन करेंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ जावा। ओके, नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। Sorry, there are several built-in exception classes that are used to handle the very fundamental errors that may occur in your program. So अब हम बात कर रहे हैं बेटा जावा की एपीआई की। अब एपीआई बोल के ज़्यादा बड़ा शब्द यूज नहीं करते और बोल देते हैं लाइब्रेरी की। जावा की एक्सेप्शन की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं भैया। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। देयर आर सेवरल बिल्ट इन एक्सेप्शन, आपने बहुत सारे देखे होंगे इससे पहले। नल पॉइंटर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ओके, देन आपने देखा होगा स्ट्रिंग इंडेक्स, आपने देखा होगा इनवैलिड क्लास कास्ट। ओके, जब इनवैलिड कास्टिंग करते हैं, so there are exception, there are more exception, SQL exception. So all these exceptions will generate. Okay, all these are the built-in classes, which are used to handle very fundamental error. Apart from this, what you can do, you can create your own exceptions by inheriting or driving the exception classes। जो एक्सेप्शन की क्लासेस है उनको इनहेरिट करके आप अपने एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। ओके, या तो लाइब्रेरी यूज कर लें या अपने बना लें। So you can create your own exceptions also by extending the exception class। एक्सेप्शन हिरार्की की अभी बात करेंगे, उसकी किसी भी क्लास को इनहेरिट करके कर सकते हैं, बट हमेशा प्रिफर्ड वे है कि एक्सेप्शन क्लास को ही हम क्या करें, इनहेरिट करें, अगर हमको हमारा एक्सेप्शन बनाना है। अब हमारा एक्सेप्शन बनाना क्यों है और उनको बोलेंगे क्या? ओके, इफ यू आर डिफाइनिंग आवर ऑन एक्सेप्शंस, तो उनको हम बोलेंगे क्या और हमको वो एक्सेप्शंस बनाने क्यों है, व्हाट द रीजन वी वांट टू बिल्ड दोस एक्सेप्शन। पहली बात, दोज एक्सेप्शन जो आप खुद क्रिएट करने वाले हो आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके, या आप उनको बोल सकते हो कस्टम एक्सेप्शंस। ओके, कस्टम एक्सेप्शन and will be used, कहाँ यूज होंगे, will be used in situation that are unique to your application, आपकी एप्लीकेशन को जो यूनिक होंगे आप उनको खुद ही डिफाइन कर सकते हो, या तो लाइब्रेरी यूज कर लो या कस्टम एक्सेप्शन बना के यूज कर लो। अब हम बात करते हैं जो कीवर्ड, the keywords we are going to use in exception handling, Java exception handling is managed by using the following keywords: try, catch, throw, throws, and finally। Okay, so we are try, catch और फाइनली, तो भैया ब्लॉक ऑफ कोड है। क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। और थ्रो एंड थ्रोस क्या है? थ्रो एंड थ्रोज हैं स्टेटमेंट। थ्रो एंड थ्रोस क्या है? स्टेटमेंट। मतलब यहाँ मल्टीपल होंगे और ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट होंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं ट्राई ब्लॉक की। तो ट्राई ब्लॉक पहले तो हम, वेट अ मिनट,
ओके, हम बात करने जा रहे हैं किसकी भैया, हम बात करने जा रहे हैं ट्राई ब्लॉक की। ओके, सो ट्राई ब्लॉक कैसे लिखते हैं, यूज करते हैं ट्राई कीवर्ड, एक करली ब्रेसेस बनाते हैं, एक करली ब्रेसेस कोड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, पूरा है ये आपका ट्राई ब्लॉक। ओके, अब ट्राई ब्लॉक में आप क्या करेंगे, एनी स्टेटमेंट that can generate an exception will be written in try block। ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो क्या कर सकता है, एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, वो कहाँ लिखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन ट्राई ब्लॉक। ठीक है बेटा, ट्राई ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही लिखना है, वो सारे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब प्रोग्राम कैन कंटेन मोर देन ट्राई ब्लॉक नेस्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैच ब्लॉक की, अब बात करते हैं कैच ब्लॉक की। कैच ब्लॉक क्या है भैया, हमारा हैंडलर है। कैच ब्लॉक क्या है, हमारा हैंडलर। ओके, सो ये हमारा कैच ब्लॉक है, इट विल एक्सेप्ट वन आर्ग्यूमेंट। कैच ब्लॉक एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। ओके, और ये हमारा क्या है भैया, हैंडलर। ओके, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑन दी करेक्टिव स्टेटमेंट्स, और यू कैन से अल्टरनेट एग्जीक्यूशन पाथ। ओके, सो ट्राई लिखा, कैच हमारा हैंडलर है, देयर कैन बी मोर देन वन कैच ब्लॉक्स। ओके भैया, क्या हो सकते हैं, मोर देन वन कैच ब्लॉक हो सकते हैं। ठीक, कैच की बात और करते हैं भैया, टाइप ऑफ एक्सेप्शन की यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसको और करते हैं, थोड़ा सा इरेजर यूज करके, थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे इसको। चले भैया, टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड रेफरेंस। ओके, तो देखिए ये क्या करेगा, कैच ब्लॉक टाइप ऑफ एक्सेप्शन, एक ऑब्जेक्ट एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ये इसका टाइप है। ओके, और ये क्या है इसका, ये है भैया रेफरेंस वेरिएबल, दिस विल होल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एक्सेप्शन। ठीक है भैया, मतलब यहाँ क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, यहाँ एक्सेप्शन और एनी सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन को आप यूज कर सकते हो, एक्सेप्शन क्लास को, या उसकी किसी भी सब क्लास को यूज कर सकते हो। यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेप्शन की जगह जो नाम लिखना है आप लिख सकते हो एक्सेप्शन। स्ट्रिंग नहीं लिख सकते क्योंकि स्ट्रिंग उस हायरार्की की क्लास नहीं है। एनी ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल है ना, समझ रहे हैं, एनी सब क्लास ऑफ थ्रोएबल विल बी एक्सेप्टेड। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको कैच के अंदर, और उसका एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर जब भी यहाँ से कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा, एक्सेप्शन जनरेट होने का मतलब है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा, इसका एड्रेस इस रेफरेंस के पास आ जाएगा, इसका एड्रेस इस रेफरेंस के पास आ जाएगा। ओके, ठीक है, then you can process this object, then you can process this particular object। okay, तो ट्राई ब्लॉक हो सकता है, मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं। कैच
कैन नॉट कम विदाउट ट्राई, ट्राई के सर विदाउट कैच नहीं आ सकता। हेलो, हाँ बेटा प्लीज। ये कैच ब्लॉक में सर प्री डिफाइन एक्सेप्शन आएंगे जो आपका जावा का कस्टम भी प्री आ डिफाइन सकता होगा? है, कस्टम भी आ ओके सर। सकता है, कस्टम ओके भी आ सर। सकता है। देखो मैंने वहां लिखा है एक्सेप्शन या सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन, आप जो डिराइव करोगे वो सब क्लास होगी एक्सेप्शन की, वो भी आ सकता है वहां पे, है ना। ओके सर। ओके, सो भैया कैच कैन नॉट कम विदाउट अ ट्राई। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, आखिरी बात करते हैं फाइनली की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? फाइनली की बात कर रहे हैं। फाइनली भी ब्लॉक है दिस। एक और, अच्छा रुकिए, इसको स्टार्ट करने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। कैच में एक बात बची है, उससे इस ब्लॉक को समझना और आसान हो जाएगा। कैच ब्लॉक will only execute if there is an exception। अगर एक्सेप्शन है तो कैच ब्लॉक चलेगा, नहीं तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके, अब देखिए ट्राई कैच, यहाँ मैं बोल देता हूँ टाइप 1 अभी के लिए, टाइप 1 कैच, टाइप 2, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अगर मल्टीपल भी हैं तो कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा, सारे एग्जीक्यूट नहीं कर जाएंगे एक बार में, सारे एग्जीक्यूट नहीं कर जाएंगे। ठीक है भैया, और कब चलेंगे ये? व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ तो नहीं चलेंगे, एक्सेप्शन नहीं हुआ तो नहीं चलेंगे। ओके, नाउ फाइनली की बात कर लेते हैं भैया। फाइनली ब्लॉक विल execute every time with exception और विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है भैया, एक्सेप्शन हो एक्सेप्शन नहीं हो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। कब नहीं करेगा? ओनली व्हेन सिस्टम क्रैश्ड। जिस सिस्टम पे आपकी एप्लीकेशन है वो क्रैश हो गया तो अब नहीं करेगा। ओनली व्हेन सिस्टम इज आउट ऑफ मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम के पास फर्दर मेमोरी नहीं है एग्जीक्यूट करने की। ओनली व्हेन कैच ब्लॉक्स और कैच ब्लॉक कॉल्स exit 0, that is system dot exit 0, a force exit of program from JVM। ठीक है भैया, अगर ये कर दिया तो भी फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा, बाकी सारी सिचुएशन में फाइनली ब्लॉक चलेगा। ओके, अब देखिए try must be followed by either catch और फाइनली। ठीक है भैया, ट्राई को फॉलो कौन करेगा? या तो कैच करेगा या फाइनली करेगा। कैच कैन नॉट कम विदाउट एन ट्राई। ओके, फाइनली के साथ भी यही सिचुएशन है। ओके, सो भैया ये हुआ हमारा ट्राई कैच फाइनली। अब हम देख लेते हैं एक्सेप्शन की हिरार्की, और एक्सेप्शन जो हिरार्की है वो डिवाइड कैसे हो रही है। तो भैया एक्सेप्शन की जो हिरार्की है इसको पहले समझ रहे हैं कि हम किस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे कि एरर को हैंडल करेंगे। इसके लिए हम समझ रहे हैं ये दोनों क्लास के नाम नहीं है भैया, ये दोनों क्लास के नाम नहीं है।
थ्रोएबल क्लास का नाम है, एरर क्लास का नाम है, एक्सेप्शन क्लास का नाम है जावा लाइब्रेरी की, लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन कोई नाम नहीं है। तो बॉक्स से कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सेप्शन हिरार्की की पेरेंट क्लास है थ्रोएबल, और थ्रोएबल का पेरेंट कौन होगा? ऑब्जेक्ट। थ्रोएबल का डायरेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो थ्रोएबल का पेरेंट इनडायरेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावा की सारी क्लासेस का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट। So throwable is the parent class of complete exception hierarchy. It is split into two. One is error, another is exception. So we do not handle errors. We do not handle errors because errors are the internal state of the system, that is out of programmer's hand. If a system is reaching out of memory, what a programmer can do? How you can control out of memory? By writing in program, no. So that's why we do not handle errors. What we handle, exception can be handled by the programmer, exceptions can be handled by the programmer. Now, the exceptions are of two types. Yeah, either they are checked or unchecked exception. Either they are checked exception or unchecked exception. Checked exception की हम बात करते हैं. Compiler forces the programmer to handle the exception. Means during compile time, compiler will check all statement for एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन तो रन टाइम पे जनरेट होते हैं सर, इसको पता कैसे चलेगा? बाय लुकिंग एट मेथड सिग्नेचर. ठीक है भैया, मेथड के सिग्नेचर को देख के वो एक्सेप्शन के लिए चेक करता है. सॉरी, इफ एनी checked exception is without handler, ऊपर लिख रहा हूं भैया, it will generate compile time error. It will generate compile time error. आपका कोड कंपाइल नहीं होगा, आपका कोड कंपाइल नहीं होगा. So for checked exception, compiler forces you to handle the exception by writing an handler. तो एक्सेप्शन अब चेक्ड और अनचेक्ड में डिवाइड हो गए हैं. अगर चेक्ड में कंपाइलर फोर्स करता है तो अनचेक्ड में क्या करेगा कंपाइलर? Compiler will not force, will not check. Okay, no compilation error, कोई भी compilation error आपको नहीं आएगा. So that is unchecked exception. Okay, चलें हिरार्की देखेंगे और फिर बंद कर देंगे. वो हिरार्की नहीं थी, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था. तो भैया जावा की हिरार्की की टॉप मोस्ट क्लास कौन सी है? जावा की हिरार्की बोलना, एक्सेप्शनल हिरार्की की टॉप मोस्ट क्लास कौन सी है? थ्रोएबल. थ्रोएबल से जो हिरार्की है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, एरर एंड एक्सेप्शन. वी हैंडल exception only, we do not concern about the error. If the stack overflow occurs, if the stack memory is full, what a programmer can do? If there's some error in the virtual machine, what a programmer can do for that? If the system is going out of memory, what a programmer can do, particularly do for that? Nothing. That is not in our control. That all hardware and physical things that is required, we do not have any control on that. So that's why what we deal with exceptions. Okay, in exceptions there are multiple subclasses, that is SQL exception, IO exception, class not found exception, then runtime exception. So all the runtime exception and the error are अनचेक्ड. कंपाइलर इनके लिए आपको नहीं बोलता है कि आप क्या लिखो, हैंडलर लिखो. तो सारी
runtime exception and their subclasses. The runtime exception class and their subclasses. Error and their subclasses are of type unchecked exception. Are of type unchecked exception. चलें आगे बढ़ते हैं. रन टाइम की सब क्लासेस देख लेते हैं. रन टाइम एक्सप्रेशन की सब क्लासेस, एक्सेप्शन की सब क्लासेस, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. अब देखिए हमने आपको क्यों फोर्स किया था क्लास नेम को ध्यान से पढ़ने के लिए. अब फायदा आएगा. नाम बोला अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक शब्द है, एक्सेप्शन दूसरा शब्द है. आपको मालूम है क्लास का नाम क्या है. नाम बोला नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पहला वर्ड, पॉइंटर दूसरा, एक्सेप्शन तीसरा. आपको मालूम है एन कैपिटल, पी कैपिटल, ई कैपिटल. Okay, number format exception, index out of. That is the beauty of naming convention, that by giving you the name you will understand कि क्या capital letter लिखना है class के name में. Okay, there are array index out of bound exception, string index out of bound exception. Okay, so you can use this exception and create your program. So class, that's all for this session. We'll see you in the next lecture. Thank you class. सर हाँ जी बेटा बोलें. बोलें. हाँ बेटा बोलें. हेलो. Thank you, class. I am ending the session. I am waiting for the doubt, but I do not got any doubt from your side. So thank you.